should be broken. बंधन टूटने पाए, Every hold of Satan should be broken. शैतान के हर एक पकड़ टूटने पाए। That is why you are called us, Lord. इसलिए आपने हमको बुलाया, Oh, to be delivered from all the powers of Satan, शैतान Lord. के सब शक्तियों से हमें छुटकारा देने By के the लिए। anointing, आपके अभिषेक के द्वारा, Lord, by the anointing, the yoke is broken, Lord. आपके अभिषेक के द्वारा सारे जुए टूट जाते हैं। When the Son sets you और free, जब पुत्र आपको स्वतंत्र करता you है, are free indeed. आप सचमुच में स्वतंत्र हो जाते You हैं। are free, O Lord. You have freed us this evening, आज Lord. की शाम आप हमें मुफ्त में देते हैं प्रभु। Transform us, Lord, हमें परिवर्तित करिए into your likeness this evening. अपने ज्योति में प्रभु आज की शाम। That is why we have come here, Lord, इसलिए हम आज की शाम to आए be प्रभु। transformed into your likeness this evening. जैसे कि आप अपने ज्योति में हमें तब्दील Not to be the same हम again. वैसे ही न रहे प्रभु, Not to be the same again, हम Lord. वैसे ही न रहेंगे प्रभु। Lord, transforming from glory to glory. और महिमा से महिमा में परिवर्तन करते हैं। Moving in the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में बढ़ते हुए प्रभु। Moving in miracles and supernatural things. चमत्कारों और अलौकिक कार्यों में बढ़ते हुए, Moving in signs and wonders. इन चमत्कारों में बढ़ते हुए, You have called us by your name, Lord. आपने नाम के द्वारा से बुलाया प्रभु जी। We have your name attached to और us. हमारे पास आपका नाम है आपसे जुड़ने के लिए। You have rubbed yourself upon us, Lord. आपने अपने आप को हम पर रगड़ दिया है प्रभु जी। हमारा ऊपर मसा किया, Lord. आपने अपने आप को मस्सा किया है प्रभु। Oh, we thank you, हम Lord. आपका धन्यवाद करते हैं। Let us be not the same हम again. वैसे ही न रहे प्रभु। Even as we go back, Lord, जब वापस को जाते हैं, let us not be the same again. वैसे ही न रहे प्रभु। Let the Holy Spirit speak to us this evening. आज की शाम पवित्र आत्मा हमसे बात करने पाए, Speak to each and every one of us, Lord. हमसे प्रत्येक से बात करने पाए, Let a transformation come into our हमारे lives. जीवन में परिवर्तन आने पाए। We worship you this evening, आज Lord. की शाम हम आपकी आराधना करते हैं। Be with us and guide us. हमारे साथ होइए, हमारी अगुवाई करिए। In Jesus' name I pray. इस मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. Hallelujah. Yes, we serve a wonderful God. हमें अद्भुत परमेश्वर की आराधना करते हैं। Every day you should come with an expectation of blessing in your life. अपने जीवन में प्रतिदिन आप आशीष की उम्मीद के साथ खुदा के पास आएं। Yes, everyone who comes here should come with an expectation of blessing upon our life. और जितने यहाँ पर आते हैं वो सब लोग आप में से प्रत्येक परमेश्वर के पास आशीष की अपेक्षा के साथ आए। Yes, every day this should be a prayer. और हर दिन का हमारा ये प्रार्थना होना You चाहिए। should say, Lord, I come with an expectation of blessing, मुझे मैं आशीष के उम्मीदों के साथ आपके पास आता हूँ, of power, सामर्थ of provision, और सब प्रकार की वस्तुओं की आशीषें and the miraculous. और चमत्कारों के लिए। That is your prayer should be. ये प्रार्थना आपकी होनी चाहिए। Every day प्रतिदिन we look to God with an expectation of sin, signs and wonders and miracles happening in our life. और अपने जीवन में परमेश्वर की ओर हम उन उम्मीदों के साथ आए और देखें चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत कार्य हमारे जीवन में। As you walk on the streets of Shadow, और जब शैडोल के सड़कों पर आप चले, yes, signs and wonders should happen. चिन्ह और चमत्कार आपके जीवन से होने If we चाहिए। are going to reach 10 lakhs people by 2035, every one of you should work, we should move in signs and wonders in your life. और यदि आप 10 लाख आत्माओं तक पहुंचना चाहते हैं 2035 के दर्शन के मद्देनजर, तो आप चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत कार्यों की अपेक्षा के तहत कार्य This is the mandate of the church, and that is the will of God for this church. और इस कलीसिया की ये इच्छा है और ये शिक्षा है। Yes, you should not come alone on Wednesday. On Wednesday, just come alone on Wednesday. और सिर्फ आप बुधवार को ही आए ऐसा नहीं, अकेले नहीं आना अकेले है नहीं आना है ना? या This place should be filled as it is filled on Sundays. और यह स्थान आज भी उतना ही भर जाना चाहिए जैसे रविवार को यह भर गया था। This place should overflow with people. और यहाँ पर जो है उमड़ते हुए लोग भीड़ होनी चाहिए। How can that happen? कैसे वो होगा? When you hunger and thirst for God and for His miracles and signs and wonders in your life. जब आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति आप भूखे और प्यास से रहेंगे, चिन्ह और चमत्कारों की उम्मीद खुदा से The रखेंगे। word of God says you are not a person, you are not alone. और परमेश्वर का वचन कहता है आप
अकेले व्यक्ति नहीं, अकेले वाले व्यक्ति नहीं है। How should you see yourself? अपने आप को आपको कैसे देखना चाहिए? That is the promise here. ये प्रतिज्ञा यहाँ पर लिखा हुआ है। One shall be 1,000. एक 1000 हो जाएगा। How should you look at yourself? अपने आप को आपको कैसे देखना चाहिए? बोलिए मेरे को 1000 जैसे दिखना। बोलिए आप अपने आप को बोलिए मैं 1000 जैसे देखना है। Yes. That is how you should see yourself. जैसे ही अपने आप को उसी दृष्टिकोण से आप अपने आप को देखें। Yes. When you see yourself as 1,000, जब आप अपने आप को 1000 के रूप में देखेंगे, this place will be transformed. तब ये जगह जो बदलेगा। Yes. Oh, this place should overflow with people so that signs and wonders should happen in और this ये place. स्थान जो है वो बढ़ते हुए भीड़ से भर जाए, जहाँ पे चिन्ह और चमत्कार और बड़े काम होने If you are not hungry for the presence of God, यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति भूखे नहीं if you हैं are not desire of the gifts of the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा के वरदानों के प्रति आपके अंदर इच्छा नहीं है, if you are not hungry for signs and wonders, और आप चिन्ह और चमत्कारों के प्रति भूखे नहीं है, God will not be able to fill you. और परमेश्वर आपको भरने नहीं। How many of you want God to fill you? और परमेश्वर आप में से कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपको भर दे? Hallelujah. Then have hunger for it. तब परमेश्वर के प्रति भूखे हो। No, the greatest sign of spirituality, और आत्मिकता की सबसे बड़ी जो चमत्कार है, चमत्कार में अद्भुत कार्य है या that you should have hunger. वो आपके प्रति भूख होना चाहिए। How should you have hunger? आपका भूख कैसा होना चाहिए? When you sleeping, you should have hunger. आप जब सो रहे हैं तो भी वो भूख होना चाहिए। When you are cooking, you should have जब hunger. आप खाना बना रहे हो तब भी वहाँ वो भूख When you होनी are चाहिए। walking, you should have जब hunger. आप चल रहे हो तब भी वो भूख होनी When you चाहिए। are talking to somebody, you should have hunger. और जब आप किसी से बातचीत करें तो भी आपके अंदर वो भूख होनी चाहिए। Yes, the Bible says you should have the mind of Christ. बाइबल बताती है हमारे अंदर मसीह का सा मन होना When चाहिए। you have the mind of Christ, जब आपके पास मसीह का सा मन होगा, then you will have hunger. तब आपके पास भूख होगी। Hunger for spiritual things in your life. अपने जीवन में आत्मिक बातों के लिए, आत्मिक चीजों के लिए भूख। That is why God has chosen you and has brought you into this place. इसीलिए परमेश्वर ने आपको चुना है और इस स्थान पर लाया है। Yes, not to warm the seat. और इस सीट कुर्सी को गर्म करने के लिए नहीं। No, not to that, not to do that. और उस काम को करने के लिए नहीं। But when you go to the highways and the byways, बल्कि आप रोडों में, सड़कों में जब जाएंगे, when you go to the streets of shadow, और जब शहरों की सड़कों में आप when you चलेंगे, go into your neighborhood, जब अपने पड़ोसियों के बीच में जाएंगे, people see you. परमेश्वर आपको, लोग जब आपको देखेंगे, There should be a difference in your life. आपके अंदर एक भिन्नता दिखाई दे। Yes, they should not see your old self. आपको लोग न देखें। शीतल को नहीं देखना नहीं चाहिए, शीतल को नहीं दिखना चाहिए, रोशनी को नहीं देखना नहीं चाहिए, रोशनी को नहीं देखना है, शिवा को नहीं देखना नहीं शिवा को चाहिए, नहीं दिखना चाहिए, जयंती को नहीं देखना जयंती चाहिए, नहीं दिखना चाहिए, उमा को नहीं देखना उमा चाहिए, नहीं दिखना है, मालिक को नहीं देखना मालिक चाहिए, को नहीं देखना है, हैनी को देखना नहीं ऐसी को नहीं चाहिए, देखना है, चाहत को नहीं देखना चाहत को चाहिए। नहीं देखना है। किसको देखना है? यीशु मसीह को यीशु देखना। मसीह को हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे ना ये बात को? Do you understand क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? how you should be looking like Jesus? और कैसे आपको यीशु के समान दिखना है? Because you are the ambassadors of God. क्योंकि आप परमेश्वर के राजदूत हैं। You are ambassadors of God. आप परमेश्वर के राजदूत हैं। Yes, you are the representative of God on this earth. और इस पृथ्वी पर आप परमेश्वर के प्रतिनिधि करने वाले हैं। God will only move through you in this world. और इस संसार में परमेश्वर सिर्फ आपके जरिए ही आगे जाएंगे। You are his representative. आप जो हैं परमेश्वर के प्रतिनिधित्व If करने you are वाले। not hungry, if you are not thirsting, then God cannot do anything in this place. और यदि आप परमेश्वर के प्रति भूखे और प्यासे नहीं है तो परमेश्वर कुछ नहीं कर सकते। We'll be satisfied with only small people in this place. और हम थोड़े छोटे लोग ही करके वैसे अपने ही में सीमित रहेंगे और संतुष्ट रहेंगे। Oh, God doesn't want that to be that. लेकिन परमेश्वर ऐसे परिस्थिति को नहीं He चाहता। said, ask of me. और बोलता मुझसे मांग, Ask of me. और मुझसे मांग, I'll give you the nation. मैं राष्ट्र को तुझे दूंगा। ऐसा दर्शन होना चाहिए. ऐसा दर्शन That kind of vision you have. इस तरह का दर्शन आपके अंदर होना This चाहिए। evening I'm laying that vision into your hearts this evening. और आज की शाम इस दर्शन को मैं आपके हाथों में सौंप रहा हूँ। Yes, God wants to do something wonderful in your life. परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अद्भुत करना चाहता Let है। us turn to Galatians आइए गलातियों की पत्री को निकालें chapter 4. और उसका चौथा अध्याय
verses 18 and 19. Galatians chapter 4, verses 18 and 19. और गलातियों की पत्री हो चुका है। चौथा 18-19 18-19 को हम देखेंगे। गलातियों की पत्री निकालिए सब। निकाल दिया? हालेलुया, निकाल दिया सब लोग? आमेन, यस, ओके। गलातियों की पत्री उसका चौथा अध्याय 18-19 पर यह भी अच्छा है कि भली बात में हर समय मित्र बनाने का यत्न किया जाए, न केवल उसी समय कि जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। हालेलुया। But it is good to be jealous. It is good to be jealous in good things always. और अच्छा है भली बात में हर समय मित्र बनाने। Yes, zealous. What do you call for zealous in Hindi? यहाँ पे ट्रांसलेशन कर Zealous मतलब जलन रखना, मतलब जलन रखना। It is good to be जलन करके in good things. और एक जलन के साथ भले काम को करना अच्छी बात है। Yes, God wants us to be zealous for the things of God this evening. और यहाँ पर इस हिंदी में ऐसा लिखा है, अच्छा बात है भली बात में अच्छा काम करना, भला अच्छा करने का यत्न। Every one of you, God wants you to be zealous. Zealous means full of zeal for God. और जहाँ पर यदि जलन की बात कही जा रही, मतलब एक धुन होना चाहिए। Yes. भले काम करने के लिए एक जुनून, एक धुन, एक जोश होना चाहिए। Your mind should be focused only on one thing. उसका मतलब है कि आप पर जो दिमाग है, एक कार्य को करने के लिए उस पर लक्ष्य रखना चाहिए। The kingdom of God. परमेश्वर का राज्य। That is the first priority in your life. ये आपके जीवन की, हमारे जीवन की पहली प्राथमिकता। Not your family. आपका परिवार नहीं। Not your food. आपका भोजन भी नहीं। Not your husband, not your wife. आपका पत्नी नहीं, ना पति नहीं। Not your children. नहीं आपके बच्चे। But your focus should be on the kingdom of God. बल्कि आपका जो ध्यान है वो परमेश्वर के राज्य की तरफ होना। That is why God has chosen you this evening. इसीलिए परमेश्वर ने आज की शाम आपको Not to be an ordinary average Christian. और इसलिए नहीं कि आप एक साधारण सीमित मसीही बने रहने के लिए। Yes, we are not like any traditional church. हम किसी रीति रिवाज वाले कलीसिया के समान नहीं। We are a church who are hungry and thirsty and zealous for the power and the presence of God. हम वो कलीसिया हैं जो चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत कार्यों के प्रति जलन, अर्थात उस आश्चर्य कर्मों के लिए हमारे अंदर धुन और जोश होना। It is good to be zealous at all times of all good things in your life. हर भले काम को करने के लिए हमारे पास यत्न अर्थात जलन होना अच्छी बात है। Yes. How does it happen? कैसे ये होता है? Verses 19. और 19वें पद में हम देखते हैं, My little children, for whom I labor in birth again until Christ is formed in you. और 19वें पद को मैं पढ़ रहा हूँ, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। Say this evening, Christ should be formed in me. और आज की शाम आप कहिए कि मसीह मेरे अंदर बनने पाए, रूप धारण करने पाए। बोलिए, Christ should be formed in me this evening. बोलिए, आज की शाम मेरे अंदर मसीह का रूप बनने पाए। What happens when Christ is formed in you? जब आपके अंदर मसीह का निर्माण होता है, रूप धारण होता है, तो क्या होता है? Mind will be like Jesus. हमारा दिमाग मसीह के समान होगा। Your speech will be like Jesus. आपकी जो बोलना है वो मसीह के समान होगा। Your hand will be like Jesus. आपका हाथ मसीह के समान होगा। Your heart will be like Jesus. और यीशु के समान आपका दिल भी होगा। Your body will be like Jesus. आपका शरीर भी यीशु के समान होगा। Your walk will be like Jesus. आपका चलना भी यीशु के समान होगा। That is why. That is what it says. इसीलिए ये बात कही गई है Christ is formed in you. कि मसीह हमारे अंदर रूप धारण। That is why I say you have to die daily. इसीलिए बोला गया कि आपको प्रतिदिन मरना है। This flesh is always running towards evil.
और ये जो शरीर है हर समय बुराई की ओर दौड़ता है। Yes, how can you prevent evil from your flesh? और कैसे आप जो हैं बुराइयों के ऊपर अपने शरीर के द्वारा जय प्राप्त When करेंगे? Christ is formed in you, जब मसीह का निर्माण आपके अंदर होगा, you will be a different person. आप एक भिन्न व्यक्ति होंगे। You will not be the old person. आप पुराना व्यक्ति नहीं रहेंगे। Whatever your old nature, जो कुछ भी आपका पुराना स्वभाव it will होगा, all be crucified on the वो cross. क्रूस में सब कुछ जो है क्रूसित हो जाएगा। Your mind, your focus, your thinking, everything will be आपका Jesus. सोचना, आपका ध्यान और आपका दिमाग जो है वो बदल जाएगा। Say, everything about me will be about Jesus. और बोलिए सब कुछ जो मेरे लिए है वो मसीह का है। बोलिए सब लोग, धीरे धीरे बोलिए। बोलिए सब कुछ जो मेरा है वो मसीह का है। मसीह का होना चाहिए। मसीह का होना चाहिए। बोलिए मसीह का होना चाहिए। बोलिए मसीह का होना That चाहिए। is why God has called you here. इसीलिए परमेश्वर ने है ना? आपको बुलाया है। Not to come here and go as you are. और इसलिए नहीं कि आप यहाँ पर आए और वैसे ही चले जाएं। God wants to bring a revolution in your life. परमेश्वर आपके जीवन में एक क्रांतिवीर को लाना चाहते हैं। Yes, you are a person of revolution. आप क्रांति को लाने वाले लोग हैं। When you have Jesus, जब आपके पास यीशु होंगे, when Christ is formed inside you, जब मसीह आपके अंदर निर्माण किया जाएगा, You will be a different person. आप भिन्न व्यक्ति होंगे। your image will be different. आपका जो रूप है वो फर्क होगा। When your husband sees you, they will see a different person. आप पति जब आपको देखेगा तो एक भिन्न रूप का व्यक्ति देखेगा। They will not see the old wife. और पुराना पत्नी नहीं देखेगा। They will see a new wife who's full of the image of God. वो एक नए पत्नी को देखेगा जो मसीह के स्वरूप में बनाई गई है। That is why I travail every day that this church should be, Christ should form in your life. इसलिए मैं इस बात को प्रतिदिन कहता हूँ कि ये जो कलीसिया है मसीह के रूप में बदलता जाए। I travail like that. और मैं उस तरीके से जो है दुख पीड़ा को उठाता हूँ। Yes, like a woman who's in childbirth. और जैसे स्त्री बच्चे को जन्म देती है, पीड़ा उठाती है, Like that. उसी प्रकार That everyone who comes into this place, और हर एक जो इस स्थान पर आते हैं, इस जगह में आते हैं, they should not go as an ordinary person when they go back. और वो मेरी प्रार्थना होती है कि मैं वो नहीं चाहता कि वो ऐसे ही चले जाए जैसे आते हैं। That the fire of the Holy Ghost to take charge of your life. और आपके जीवन का जो पूरा काम आपको वश में कर ले पवित्र आत्मा की आग। Like you're plugging yourself into 1,000 watts of power into your life. और ऐसा जैसे 1000 वाट के में जैसे कोई प्लग लगा रहता है, वैसे आप भी उस 1000 वाट के स्वर्गीय सामर्थ में जब चिपक जाएं। Have you seen the power of the electricity, how powerful it is? और आपने बिजली की सामर्थ को देखा कितना ताकत होता है उसमें। That is so powerful. वो बहुत ताकत सामर्थ। That is the kind of power God wants to give into your life. और ऐसी शक्ति ऐसी सामर्थ परमेश्वर आपको देना चाहता है। When कब? When you're hungry and you're thirsting for God. जब आप परमेश्वर के प्रति भूखे और प्यासे होते हैं। Every day, प्रतिदिन Christ should be formed in you. मसीह आपके अंदर रूप लेना है। बोलिए, मसीह मेरे जीवन में फॉर्म करना है। बोलिए, मसीह मेरे जीवन में फॉर्म करना है। Hallelujah. Yes, that is why God has called you here. इसीलिए परमेश्वर ने स्थान पर आपको You know, बुलाया है। when that happens, जब मालूम है जब ऐसा होता है, what happened to the woman who was suffering with the issue of blood? और क्या हुआ उस महिला के साथ जो लहू बहने की बीमारी से ग्रसित थी? She just touched the hem of his garment. और उसने यीशु के वस्त्र के कोने को ही जस्ट थोड़ा खोली थी। And miracle, instantaneous miracle. और तुरंत सामर्थ। What does the Bible say? बाइबल क्या बताते हैं उस विषय पे? John 14. यूहन्ना 14 अध्याय। Let us turn to John 14. यूहन्ना 14 अध्याय निकालेंगे। Verses 12. और 12वें पद को हम देखेंगे। पढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। हालेलुया। क्या है? बड़े काम करना है। कब होता है? When will it happen? कब ये होता है? मसीह को रूप आपको धारण करना और आपके जीवन में हो जाता है। When Christ is formed inside you. और जब मसीह आपके अंदर निर्माण होगा, आपके अंदर मसीह बनेगा,
even your cloth will be different. यहाँ तक कि आपका जो वस्त्र आप पहनेंगे उसमें भी सामर्थ होगा। You know why God is asking me to wear only certain dress? You know why? और क्यों परमेश्वर मुझे उस खास कपड़े को पहनने के लिए बोल देता है? Because He wants that power to be upon my, even on my dress. पर क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मेरे कपड़ों पर भी परमेश्वर की सामर्थ हो। Yes, you are a people where the power of God you will be even on your dress. और आप वो व्यक्ति होंगे जो परमेश्वर की सामर्थ को अपने कपड़ों पर भी लेके चलेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Not only your touch, सिर्फ आपके शरीर के में नहीं, even your cloth should have the anointing of the Holy Spirit. यहाँ तक कि आपके वस्त्र में भी परमेश्वर का अभिषेक होगा। Hallelujah. Hallelujah. Do you believe it? क्या आप विश्वास करते Say हैं? hallelujah. बोलिए हालेलुया। I believe it. मैं बोलते हैं विश्वास करता हूँ। That is why God has called you इसलिए परमेश्वर ने आपको बुलाया to be in His image this evening. और कि आज की शाम मसीह के स्वभाव उसके स्वरूप में बनते चले। Yes, say Christ should be formed in me this evening, Lord. बोलिए प्रभु से, प्रभु आज की शाम मेरे अंदर बोलिए मसीह धीरे का, धीरे बोलिए। मेरे साथ बोलिए, परमेश्वर आज की शाम मेरे अंदर मसीह का स्वरूप बनने पाए। When people see you, they'll see the form of Jesus. और जब लोग आपको देखेंगे तो यीशु के स्वरूप को देखेंगे आपके। What happened when they saw Jesus? जब यीशु को आपके अंदर देखेंगे तो क्या होगा? Yes, they saw compassion. वो तरस को देखेंगे, They saw love. वो लव प्रेम को देखेंगे, They saw power. वो सामर्थ को देखेंगे। That is how people should see you. इसीलिए परमेश्वर, That is why God has called you. इसीलिए परमेश्वर ने आपको बुलाया। God has called you to be a different person. परमेश्वर ने आपको एक भिन्न व्यक्ति, फर्क व्यक्ति होने के लिए Don't बुलाया। compromise with the world. आप संसार के साथ समझौता न करें। God has not called you to compromise with the world. परमेश्वर ने आपको संसार के साथ मेल मिलाप करने के लिए नहीं If you बुलाया। are compromised with the world, यदि आप संसार के साथ your mind will be corrupt. आपका दिमाग प्रदूषित हो जाएगा, Your thinking will be corrupt. आपका सोच प्रदूषित हो जाएगा। You will only be thinking of the pleasures of the world. संसार के सिर्फ आनंद को आप ढूंढेंगे। No, no, no. That is not why God has called you. ये परमेश्वर ने इसलिए नहीं बुलाया। God has called you to move with power in your life. परमेश्वर ने बुलाया कि आप सामर्थ के साथ उस आगे बढ़ें। Hallelujah. हालेलुया। Let us turn to Colossians आइए 3:10. Colossians 3:10. 3:10 कोलोसियों की पत्री 3:10 निकालें। Hallelujah. निकालिए सब। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाता जाता है। Hallelujah. And having put on the new man who is renewed in knowledge according to the image of him who created him. नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। Yes, you are created as a new man. आप एक नए मनुष्य के रूप में आपका सृजन हुआ है, According to the image of God. परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार। You see how God has created you? आप देख सकते हैं परमेश्वर ने आपको कैसे बनाया है। You know, when he did not sin, और जब पाप नहीं किया था, before he sinned, और पाप करने से पहले how did he look? कैसे वो दिखता था? He looked like God. वो परमेश्वर के जैसे, He was a replica of God. वो परमेश्वर का क्या दिखाने वाला था। Because he sinned, he lost that image of God. और गुनाह के कारण, पाप के कारण उसने परमेश्वर की स्वरूप और समानता को खो दिया। But we don't have to be in despondency in our life. हमें जीवन में निराश होने की निराशा में नहीं रहना। Because Christ is the new Adam. क्योंकि यीशु मसीह नया आदम है। That is what he said. You are in the image of Christ. इसलिए उसने कहा है कि मसीह में एक नया। Yes, you are formed in the image. You are formed in the image of Christ. आप मसीह के स्वरूप में सृजे गए हैं। Hallelujah. Hallelujah. You are formed. You are like Jesus. आप यीशु के जैसे हैं। That's what it says in the first verse we saw in what did it say? First verse in Galatians 3:19, right? That's what we saw in Galatians 3:19. Go. Yes. और 3:19 गलातियों 3:19 में वही बात लिखता है। Yes, that is what we saw, no? Yeah. What was it? 3:19 ना? No. तब फिर व्यवस्था नहीं वो नहीं है। वो 4:19 yeah. और यही बात लिखा हुआ है, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में
मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा किसी पीड़ाएं सहता हूं। Christ should be formed in us. और हमारे अंदर मसीह का रूप बन Put जाए। on the new man. एक नया व्यक्ति को अंदर The बन old man should die. पुराना व्यक्ति मरना है। What? The old man say the old man should die. बोलिए पुराना आदमी मरना है। Yes. According to the image of him who created you. और जिसने हमें बनाया है उसके रूप के अनुसार। What was his image? उसका रूप क्या है? To be like him. उसके समान, Just like God. परमेश्वर के ही जैसे ही। Yes. That is how you should be. हमें भी वैसे ही होना है। Full of holiness in your life. अपने जीवन में संपूर्ण पवित्रता के साथ Set apart. अलग हो जाइए। The Father is perfect. You should be perfect. पिता सिद्ध है, आप भी सिद्ध बने। He said, "Be holy, for He is holy." वो कहता है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि परमेश्वर पवित्र। You are a set apart person. आप अलग किए हुए व्यक्ति हैं। Yes, and put on the new man in your life. अपने अंदर नया व्यक्ति को डालें। Yes, created by Him. उसके द्वारा आप बनाए गए। See, the purpose of God for creating you was to transform your life and to bring new meaning and power in your life. और आपको मसीह में बदल देने का परमेश्वर का उद्देश्य है कि आप जो है एक नया अर्थ और नए के साथ जीना शुरू करें। That is what it says in Acts of the Apostles chapter 1. और पेतों के काम पहले अध्याय में यही बात को लिखता है। That is what it says. When the Holy Spirit comes on you, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, पढ़िए Romans Acts 1:8. I'm sorry, Acts 1:8. यहाँ लिखता है परंतु जो पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। Hallelujah. When you are in the image of God, जब परमेश्वर के रूप में आप, when the new man comes into you, जब नया व्यक्ति आपके अंदर आता you है, will receive power. आप सामर्थ को पाओगे। बोलिए power. बोलिए सामर्थ। जोर से बोलिए सामर्थ. सामर्थ। Yes, you'll receive the power of the Holy Spirit upon your life. अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करोगे। Every day. प्रतिदिन। Not yesterday. कल नहीं, कल वाला नहीं। Not last week. पिछले सप्ताह वाला भी नहीं। Every day. प्रतिदिन। So that is why I anoint you every time you come into this place. I anoint you because I want you to be fresh with a new anointing of इसलिए God. मैं हर बार जब आप आते हैं मैं आपका अभिषेक करता हूं जिससे कि आप हर बार नया अभिषेक के साथ जाएं। Yes, every day we should walk with a new anointing, हमें प्रतिदिन नए अभिषेक के साथ with चलना a new power, नई सामर्थ के साथ with new excellence in your life. और एक नया एक्सीलेंस अनुभव के साथ। Yes, God has called you for that. परमेश्वर ने उसीलिए आपको बुलाया है। And let us turn to 2 Corinthians. दूसरा कुरिन्थियों में जाएंगे Let हम। us turn to 2 Corinthians. दूसरे कुरिन्थियों की पत्री Verse chapter 3, तीसरा अध्याय verses 18. और 18वें पद को हम देखेंगे। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप उस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। Hallelujah. यहाँ कैसा बदलते जाएंगे? अंश अंश करके Yes. From glory to glory. और उसी के तेजस्वी में Into the same image. उसी रूप में, प्रभु के उसी रूप आत्मा के रूप में। Did I not tell you? When people should look at you, they should look Jesus. क्या मैंने इस बात को आपसे नहीं कहा कि जब लोग आपको देखें तो यीशु मसीह को देखें? When they saw, they could not see Moses because of the glory of God. और उस समय ऐसा हुआ था कि जब मूसा को उन्होंने देखा तो मूसा को देख नहीं पा रहे। Yes, there was a man of God called Charles Finney. और चार्ल्स फिनी करके प्रभु के एक दास हुआ करते। After he came from prayer, he looked at people. People came under conviction. और जब उस लोगों के सामने आए, लोगों ने देखा तो वो जो कायल हो गए। Yes, और लोग वो देखने के बाद लोग पश्चाताप करने के लिए। हाँ, वो जब उस लोगों जब उसने देखा तो लोग पश्चाताप करने लगे, कायल हो गए। Yes, that kind of eyes you should have. इस तरह की निगाहें हम पर, समझ रहे ना? कैसा? What kind of eyes you should have? इस तरह की नजरें हम पर होनी चाहिए। The eyes of Christ. मसीह का नजर। Yes.
you're being transformed into the same image from glory to glory, just as by the Spirit of the Lord. और तुम तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है उसी की तेजस्वी में अंश अंश करके बदलते जाते You हैं। know why God has called you? मालूम है क्यों परमेश्वर ने आपको Transform you into His image. उस अपने रूप में आपको बदल लेने Not for you to walk in your old nature. इसलिए नहीं कि आपको अपने पुराने जीवन में जीने के लिए Transform. परिवर्तन। बोलिए परिवर्तन। बोलिए परिवर्तन। मेरे जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। यीशु मसीह का स्वभाव होना चाहिए। स्वभाव होना चाहिए। That is how God has called you. इसीलिए परमेश्वर ने मुझको बुलाया। Then signs and wonders will happen. तब चिन्ह और चमत्कार होंगे। Then miracles will happen. तब चमत्कारें होंगी। Don't say only the pastor has to do the miracle. और ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ पासवानों के No, 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 no. That is not the word of God. ये परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं कहता। Everyone, हर एक जन, every believer, हर एक विश्वासी, everyone who puts his name, who puts the name of Jesus upon yourself. जितने लोग यीशु का नाम अपने पर रखते हैं, So such people will do great and mighty things. वैसे लोग ही महान बड़े काम को करेंगे। Transform into His image. उसके स्वभाव में बदल जाना। बोलिए उसके स्वभाव में बदल जाना। आज रात को उसके स्वभाव में बदल जाना। आज रात उसके स्वभाव में बदल जाना। That is why He has called you. इसलिए उसने Transform to His image from glory to glory. और तेजस्वी और तेजस्वी में उसके स्वरूप में बदल जाना। If you want to paralyze Satan in your life, यदि आप शैतान को अपने जीवन में विकलांग करना चाहते हैं, if you want to see the power of Satan be completely paralyzed, यदि हम चाहते हैं कि शैतान पूर्ण रूप से विकलांग हो जाए अपने जीवन में, then you have to move from power to power in your life. तब तो चाहिए कि आप सामर्थ में बढ़ते जाएं। When you move from power to power in your life, जब अपने जीवन में सामर्थ में आगे बढ़ेंगे, you will be a different person. तब आप भिन्न व्यक्ति होंगे। The power of God will fill you. परमेश्वर की सामर्थ आपको परिपूर्ण He will transform you. वो आपको बदल देगा, He will change you. वो आपको परिवर्तन करेगा। That is why He has called you. इसलिए परमेश्वर ने आपको To बुलाया renew your put a new man inside you. आपके अंदर एक नए व्यक्ति को डालने The के लिए। old self dying on the cross, पुराना स्वभाव क्रूस पर मर जाना crucifying the old self on the cross. और अपने स्वयं का तो क्रूस पर पूरे रूप से समर्पित हो When you जाना। surrender yourself completely to जब God, पूरे तौर से प्रभु को अपने आप when you say, Lord, I'm totally sold out for you. और जब आप कहेंगे प्रभु मैंने पूरे तौर से अपने आप को आपके लिए बेच दिया है, Yes, everything I give it to you. मैं सब कुछ तुझे दे चुका हूँ, You take possession of my life. मेरे जीवन में आप अपनी उपस्थिति को ले लीजिए, You take everything of my मेरे life. जीवन में सब कुछ को आप When ले people लीजिए। see me, जब लोग मुझे देखेंगे they should see only the anointing. तब आपके अभिषेक को They should see only your image in my life. आपके स्वभाव को आपके रूप को मेरे अंदर देखें। My hand should be your hand. आप मेरा हाथ आपका हाथ होने पाए, My eyes should be your eyes. निगाहें आपकी निगाहें होने पाए, My mouth should be your मेरा mouth. मुंह आपका मुंह होने पाए, My tongue should be your मेरा tongue. जीभ आपका जीभ होने पाए, My ear should be your ear. मेरे कान आपके कान होने पाए, My body should be your मेरा body. शरीर आपका शरीर होने पाए, My cloth should be your cloth. और मेरा कपड़ा आपका कपड़ा होने पाए। Then miracles will happen. तब चमत्कार होंगे, Then miracles will happen. चमत्कार होंगे। God has called you to do great miracles in your life. और परमेश्वर ने आपको बड़े चमत्कार करने के He लिए wants to transform your life. वो आपके जीवन He को wants to change your वो life आपके जीवन को बदलना from चाहता an है, ordinary life to an extraordinary एक life, साधारण जीवन से असाधारण जीवन की from an तरफ, ordinary life to a supernatural life, एक साधारण जीवन से अलौकिक जीवन की from तरफ, an ordinary life to a miracle working life. एक साधारण जीवन से चमत्कार करने वाले जीवन की ओर। The Christian life is not an ordinary life. और मसीह जीवन साधारण जीवन नहीं है, It's a supernatural life एक अलौकिक जीवन है filled with signs and wonders and miracles. और चमत्कार और चिन्ह और चमत्कारों से भर जाने वाला जीवन। That is the kind of expectation you have to go tonight from this place. और आज की रात इस जगह से इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आपको घर जाना है। Tell God, कहते हुए प्रभु से, Lord, प्रभु I came with a small mind this evening. आज की शाम में छोटे समझ और दिमाग के साथ आया था। Transform my mind, मेरे Lord. जीवन दिमाग को I बदल want to दे। be a different person. मैं भिन्न व्यक्ति बनना चाहता हूँ। Oh, when people see me, जब लोग मुझे देखेंगे, they should see the image of Christ in वो me. मसीह के रूप को मेरे अंदर वो देखने पाए। Yes, the new man. नया व्यक्ति
from glory to glory, महिमा से महिमा में, transforming into your image, Lord. आपके रूप में बदलते हुए, Putting the image of Christ in my life. मेरे जीवन में मसीह के रूप को धारण करते हुए, When you make a determination in your heart, जब अपने हृदय में ऐसा संकल्प आप लेंगे, when you surrender your life and say, Lord, you take charge of my life. जब आप अपने जीवन को मसीह के हाथों में, परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हुए कहेंगे कि प्रभु मेरे जीवन का हिसाब आप रखें, your eyes will open. आपकी आंखें खुल जाएंगी, You will not see the things around you. आपके चारों तरफ आप उन चीजों को नहीं देखेंगे, You will see angels walking in this place. आप स्वर्गदूतों को अपने चारों तरफ देखेंगे। Hallelujah. कितना लोग स्वर्गदूत को देखना चाहते हैं? कितने लोग स्वर्गदूत देखना चाहते हैं? Yes. You want to see angels walking in this place? क्या चाहते हैं कि स्वर्गदूत इस Then स्थान you पर have to चले? have spiritual eyes. तब आपके पास आत्मिक When you आंख होना surrender चाहिए। your life, जब अपने जीवन को आप when you give समर्पित- everything to Him, जब सब कुछ प्रभु को आप you देते say, हैं, Lord, I don't want ordinary eyes. प्रभु जी मुझे साधारण नजर नहीं I want चाहिए, supernatural eyes. मुझे अलौकिक नजर I चाहिए, want to see those things, those supernatural things in my life. और मैं उन अलौकिक चीजों को अपने जीवन में चाहता हूँ। It will be a transformation. एक परिवर्तन होने You will में, be walking in the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में चलते हुए, Transforming, changing you, transforming you. और आपको बदलते हुए, परिवर्तन करते हुए, Yes, you will be like walking heaven on earth. आप जो है स्वर्ग को पृथ्वी में चल लेके चलेंगे। Yes, that is what God said in His prayer. Let it be done on earth as it is in heaven. और इसीलिए प्रार्थना में ऐसा लिखा गया है कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, इस पृथ्वी पर भी। You don't have to go to heaven to enjoy all the benefits. और सारे जो आशीष है उसको स्वर्ग में जाके आनंद उठाने की जरूरत नहीं है, You can enjoy it here. आप यहीं पर उसका Hallelujah. Say, I can enjoy it here. बोलिए मैं यहीं पर उसका आनंद उठा सकता हूँ, When I surrender my life to जब Him. अपने जीवन को समर्पित When I am करूंगा, walking in the image of Him. जब परमेश्वर के रूप में मैं चलूंगा, Transforming from glory to glory. जब अपने आप को महिमा से महिमा में परिवर्तित With a करूंगा, new power. एक नया With सामर्थ, new anointing. नया अभिषेक, With a new mind. नया दिमाग With से, new signs and wonders. एक नए With new miracles. और नया चमत्कार, With new supernatural एक things. नया अलौकिक काम, I'll be a different person. मैं भिन्न व्यक्ति हूँ। Let us close our eyes. आइए अपने आँखों को Yes, बंद come forward, come forward. If God has touched you today, come forward. Yes, God is working in your life this evening. Yes, if you are hungry for God, if the power of God is upon your life, yes, tell God, Lord, transform me, Lord. Yes, Lord, let me be in the image of Christ this evening. Let me be in the image of Christ this evening. That is why you have called us, Lord. That is why you have called us, Lord. To be in your image, Lord. To be in your image, Lord. Lord, transform us, Lord. Transform us, Lord. To be in your image this evening, Lord. To be in your image this evening, Lord. Touch him, 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 Lord. Yield yourself to God. Yield yourself to God. बोलिए, yes, I'm yielding myself to God. I'm yielding myself to God. बोलिए, परमेश्वर, ओ आप मेरे अंदर आ जाइए, मेरे अंदर आ जाइए, मेरे अंदर आ जाइए. ओ बाबा शिकलाबा शंतराबा, ओ बाबा शिकलाबा शंतराबा, ओ बाबा शिकलाबा शंतराबा, ओ बाबा शिकलाबा शंतराबा, ओ बाबा शिकलाबा शंतराबा. Yes, Lord, yes, Lord. Touch the Lord, touch the Lord, touch the Lord, touch the Lord. Touch the Lord, touch the Lord, touch the Lord, touch the Lord. Yes, Lord, this evening, Lord, being in the image of Christ, in the image of Christ, that is why you have called us. That is why you have called us, Lord. Being in the image of Christ, Lord. Being in the image of Christ. 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 This evening, Lord, transform us. Transform us this evening, Lord. We are not ordinary people. We are extraordinary people. Supernatural. Supernatural. Things are happening upon our lives. We thank you, we praise you, we bless you. Thank you for your anointing. Thank you for your new anointing. Thank you for your powerful anointing. Transforming our lives into your image. Glory to glory. We thank you, Father. Thank you for your presence. As we go in this from this place, carrying the anointing of the Holy Spirit.
In Jesus' name I यीशु के pray. नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen.